Hi guys, welcome back. And I think Ridhima is free from her Zoom classes. So let me just check, okay? Ridhima, are you free? Yeah. Come. How are you? I'm fine. Hey, great. So we are back with our origami classes. Oh, I love origami classes. How was your Zoom? Was it good? Yeah, it was good. Did you meet your friends and your teacher? Yeah, they are very helpful in studying. Is it? Yeah. Alright. So some recreation time for us maybe. Yay. Okay. तो सभी व्यूअर्स ने हमें बताया था रिद्धिमा कि वो जैपनीज शुरू तो बन गया, उसके बाद क्या बनेगा? तो मैंने कहा भैया वो जो क्रेन था, वो जो शुरू था, वो जापान से उड़ता जा रहा है, उसे कहीं बैठने तो दो, give him a nest or something. So that's why we created this lovely, small flower pots where you can see that you can keep some your belongings and stuff like that, and also you can rest your bird. All right. Very useful. Yes, and this is very simple as the previous one. All right. So we are going to teach you. Would you like to learn? Yes. Viewers, you want to know how it is done? Okay. Fantastic. So Ridhima, सबसे पहले choose your color. I will choose orange. Okay. And I will choose pink, and as well as I will choose a green. I'll tell you why I have chosen two papers. Oh, so if you want to learn how to make these cranes, you can learn it from the previous video. And before we go into the video, like this video, subscribe to our channel and ring the bell button. So, Do what she says, let's go. I have no idea, but at least, whenever she calls me, I can at least teach some of those childhood creative stuff, right? So let's begin, Ridhima. Yeah. Okay, guys. So before we get into making this, let me tell you that why did I take two papers? You can go with one paper also, or you can take two papers. I took two papers because there is one outside and there is one inside. So this inside leaf is white. So if we take two papers, then the inside leaf will be one color and the outside leaf will be of another color. So that is something what I thought may be good. So you can also go with something of this kind, but you need to be very careful with keeping the corners. So better you be with one as of now and just learn it, and then while practicing it you can maybe use both the papers. Okay? So this is very simple, guys. If you have followed our previous session where we met with Suru, this time we will just tell you what needs to be done. Okay? So let us be more accurate to our design. So for that I would like to switch off this music because we are now getting into a serious business. All right? So we have this paper. You make sure कि ये पेपर का कॉर्नर से कॉर्नर सारा हमारा बिल्कुल कहीं से बाहर ना जाए, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमें कॉर्नर टू कॉर्नर प्रोसेस में चलेंगे. ये हमने कॉर्नर टू कॉर्नर मैच किया. ओके, एंड विथ अ जेंटल फिंगर वी प्रेस द अदर साइड्स, और ये हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर प्रोसेस. यू रिमेंबर? सो फॉर दोज जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा था, हमारा एक there are two processes, two schools of origami in Japan. So it was written in Hiragana and Katakana language both. तो इसमें क्या है कि एक तो आपका ये स्क्वायर एंड टू एंड होता है, और एक ये कॉर्नर टू कॉर्नर होता है. सो दिस कॉर्नर मैचेस द अदर कॉर्नर. सो हम लोग दूसरे सेशन के बारे में जो हमने पहले सोचा और सीखा और बाद में सीखेंगे वो हम बाद में बताएंगे, बट just quickly get into this that we are going with the corner to corner method, Ridhima. All right? Yes. ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अगेन वी आर कनेक्टिंग दिस कॉर्नर टू द प्रीवियस कॉर्नर. जस्ट सी दिस, इस तरीके से. ऑलराइट? तो क्यों इसे कॉर्नर टू कॉर्नर बताया जाता है? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया कि एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर में चले गए, फिर दूसरे कॉर्नर से हम तीसरे कॉर्नर में चले गए. ऑलराइट? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको अंदर वाला कलर व्हाइट चाहिए, मतलब अंदर वाला कलर ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, कि अंदर वाला कलर आपको पिंक चाहिए? अंदर वाला कलर मुझे ग्रीन चाहिए.
ओके, सो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन, सी ग्रीन को हमने अंदर रखा है और पिंक वाला कलर हमने बाहर रखा है. ओके, तो फर्स्ट कॉर्नर आई रिपीट माय स्टेप, ये मेरा पहला कॉर्नर और उसके बाद मेरा ये रहा दूसरा कॉर्नर. ऑलराइट, यहाँ तक आप भी पहुंच गए हो? हाँ. ओके, आप सब भी पहुंच गए हैं. ऑलराइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें दो कान है, ये पहला कान और ये दूसरा कान. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कान को इसको थोड़ा सा हम लोग इसको खोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर, फिर अगेन इस कॉर्नर को इस कॉर्नर में मिला रहे हैं. सो ये पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये कॉर्नर्स एक दूसरे कॉर्नर से स्मूथली मिलता चला जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कॉर्नर टू कॉर्नर प्रोसेस. तो ये हमारा स्मूथली मिल गया है इस कॉर्नर से. इस स्टेप को मैं अभी दोबारा दिखा सकता हूँ. हम इस प्रोसेस में थे. ओके, उस प्रोसेस के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास दो कान है, तो हम पहले कान के अंदर हमने इस तरीके से इसको फिंगर डाल के फ्लश आउट किया और उसके बाद हमने इस टिप को इस टिप के साथ अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर बड़े स्मूथली इसको हमने मर्ज किया. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल फ्लिप द पेपर एंड वी विल मेक an impression. We'll create an impression here again. See, this is very important in our origami. Creating an impression is a very important task. Okay, because you know, again, this line, that line, this by making this fold, the kind of line that we are making, I call it an impression. Okay, so after making this impression, again, what I am doing by putting my finger here inside, I am making another fold. और मैं इस corner से दूसरे corner को again smoothly मर्ज कर रहा हूं और एट द सेम टाइम मैं साइड्स को भी विद द जेंटल प्रेशर ऑफ माय फिंगर मैं इसको दोनों तरफ से बंद कर रहा हूं. सो वी अगेन हैव दैट स्क्वायर. वी हैव दैट स्क्वायर अगेन. ओके, फैंटास्टिक. सो नाउ ये यहाँ तक ये जो है, जैसे यू नो अगर आप लोग खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं कि भैया आप अदरक लहसुन और प्याज का एक जो है सबसे पहले आप उसको फ्राई करते हैं, तो वहां तक आप पहुंचते ही हैं. कुछ भी खाना बना रहे हैं आपको वो जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड यू नो टमाटर और आपको जो है, मैं भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन में सीख गया हूँ, यू नो ऑनियन, उन सब का आपको एक मसाला बनाना होता है. तो सीधी तरीके से मैं आई वुड लाइक टू से टू ऑल माय किड्स कि ये भी एक मसाला है. तो यहाँ तक बनने के बाद ही वो जापानीज क्रेन बना था, यहाँ तक बनने के बाद ही हमारा ये छोटा सा फ्लावर पॉट भी बनेगा और यहाँ तक बनने के बाद ही पता नहीं क्या क्या यू नो इन जापानीज साइंस पेपर साइंस कम से कम 110 तरह के जापानीज क्रिएटिव्स हैं. तो उतना अभी हम धीरे धीरे करेंगे, बट एज ऑफ नाउ टुडे इज द सेकंड क्लास. सो आई एम सेइंग दैट इतना अगर आपको आता है ना तो हाफ द बैटल इज वॉन. यू नो, तो इतना तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं. अब यहां से आप कुछ करेंगे तो कुछ बन जाएगा, कुछ और करेंगे तो कुछ और बन जाएगा. सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू मेक द क्रेन. टुडे in this class we are going to make this flower. So we are just a few steps ahead before. दो चार स्टेप करते ही हम लोगों के सामने वो फ्लावर होगा. जस्ट यू नो लेट अस गेट बैक टू व्हाट वी वर डूइंग. तो ये हमारे पास ये स्टेप है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो कॉर्नर्स हैं. एक कॉर्नर है जो बंद वाला कॉर्नर है, यू नो लाइक दिस इज द क्लोज कॉर्नर, और दूसरा कॉर्नर हमारा है जो खुला वाला कॉर्नर है. तो होता क्या है कि हमें ये बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे जो हम लोग जो फोल्ड्स करेंगे वो सब फोल्ड गड़बड़ा जाएगा. क्योंकि हमें ये ऊपर से ओपन रखना है, तो हम जब ये बनाएंगे तो हमारा ये जो है ओपन वाला हिस्सा ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए. ऑलराइट, राइट रिद्धिमा, आपका ऊपर की तरफ है, दिखाओ. ओके, वेरी गुड. अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग द impression. यस, राइट यू आर. तो यहां हम लोग फिर से ये फोल्ड क्रिएट कर रहे हैं. बेसिकली वेरी जेंटली वी हैव टू डू दिस. रिमेंबर दिस इज अ पेपर, तो डोंट फोर्स विथ इट. ये फट भी सकता है, इसलिए बड़े आराम से और आसानी से और प्यार से, और गलत इंप्रेशन नहीं बनाना है दोस्तों. ये हमारा ये फोल्ड होके यूं इस शेप में आ गया. ठीक है, ओके. और इस शेप में आने के बाद ये हमने यहाँ से भी इसको फोल्ड किया. ठीक है, ये फोल्ड हुआ और ये सब करने के बाद हमने ये सारे फोल्ड्स खोल दिया. सो व्हाट हैपेंड, हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर शेप आ गया. ठीक है, ये एक इंप्रेशन जिसे मैं कहता हूँ बार बार. तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप आ गया एक. ओके, और इस शेप के बाद what we have to do, we just have to repeat the same process. Repeating the same process again and again is very important in origami. So right now this is exactly how you can see I had folded this part, then I had folded the other part, and then I had folded the tip of it.
सो ये हमारा ट्रायंगल बन गया था दोस्तों, और उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल दोबारा खोल दिया. सो नाउ हमारे पास क्या आया कि ये पूरा एक ट्रायंगल के तौर पर एक शेप आ गया. ओके, सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस आई जस्ट फ्लिप इट ओवर, और इस बार हमें इधर भी ये ट्रायंगल का शेप लाना है. सो वेरी सिंपल, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हमने ये फोल्ड किया यहां से, ये हमारा दूसरा फोल्ड रहा, एंड देन अगेन द टिप फोल्डेड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, एंड हमने ये खोल दिया. सो हमने क्या देखा कि हमारे दोनों तरफ ही वी हैव दिस इंप्रेशन नाउ. ओके रिद्धिमा, फाइन. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट टू द व्यूअर्स फर्स्ट? Yeah. So what we did is that we created some triangular impressions by just folding and creating a triangle and then opening it, and again on the other side we'll just do the same and then we are done. Correct. So having said that, we are going to the next step, and this step is very important and crucial, so you know, look at it very carefully. हम क्या कर रहे हैं, हम इसका अनियन स्किन की तरह एक जो हमारा इसका इनर साइड है, इसको हम ऐसे फिंगर से खोलकर और विद द हेल्प ऑफ द अदर फिंगर हमने ये एंगल बनाया. उसके बाद अगेन वेरी केयरफुली कीपिंग बोथ द पेपर्स इन माइंड, हमने ये दूसरे फिंगर से बिल्कुल सी इम्प्रेशन टू इम्प्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इम्प्रेशन, दिस इज मर्जिंग विद द अदर इम्प्रेशन, एंड ये हमारा यहाँ पे ये दो ट्राइंगल क्रिएट हुआ. यस, राइट, एज रिद्धिमा हैज डन. ओके, और इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फ्लिप इट. तो ये हमने इसको दोबारा फ्लिप किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड वी हैव टू रिपीट दिस सेम प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने दोनों पेपर इस्तेमाल किया है तो आपको दोनों पेपर साथ में लेना होगा दोस्तों, और अगर आपने एक ही पेपर इस्तेमाल किया है तो रिद्धिमा की तरह आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर आप एक ही पेपर से काम कर सकते हैं. बट क्योंकि मैंने दोनों पेपर लिया हुआ है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, जहाँ पे दोनों पेपर्स को साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर का एंगल कहीं और चला गया, दूसरे पेपर का दूसरी तरफ चला गया. सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. सो ये करने के बाद आपको, जब आप इसको फ्लिप को ओपन करेंगे, तब आपको ये दोनों पेपर केयरफुली लेके ये जो इंप्रेशन है इसको आपको ये एंगुलर शेप देना है. और सिमिलरली यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग. ये मैंने अगेन विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर एंड द टिप ऑफ माय फिंगर मैंने ये शेप दिया है. ओके, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. ओके, वी हैव अ स्ट्रक्चर वेयर इट लुक्स जस्ट द सेम ऑन बोथ द साइड्स. अब इसमें नाउ वी आर जस्ट 3 steps before. After 3 steps we are done. So this is very interesting. हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बीच में से ओपन कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ भी हम बीच में से ओपन कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये पिंक वाला पोर्शन आ गया. रिद्धिमा, कैन यू शो इट? हमने क्या किया बेसिकली, कैन यू एक्सप्लेन? हमारे पास जब ये बन गया था, देन हमारे पास जो ये ऐसे वाले हैं, बीच वाला जो सेक्शन है, बीच वाले सेक्शन को खोल दिया और ऐसे कर दिया. एग्जैक्टली. और वो करने के बाद हम क्या करेंगे रिद्धिमा, हम लोग जस्ट रिपीट करेंगे उसी प्रोसेस को जो हमने दूसरे साइड में किया था. सो इन ओरिगेमी it's all about repeating the same process again and again and again. So अगर आपने वो process repeat किया, but just make sure कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो it should be very smooth, ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे ये मेरा कॉर्नर है, दिस कॉर्नर इज रियली स्मूथ, यू कैन सी. तो ये थोड़ा केयरफुली और थोड़ा सा, बिकॉज ये क्विकली बनता है, बट जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों. अगर आप बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपका चीज़ अच्छा नहीं बनेगा एंड यू विल नॉट लाइक इट. सो दो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ आर्ट. बट हम कुछ भी चीज़ करते हैं उसको अगर थोड़ा सा अपना दिल लगा के तसल्ली से प्यार से करेंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छा बनेगा. और तब आप ये चीज़ आप अपने बड़ों के सामने, दादा दादी, मम्मी पापा, उनके पास ले जाके दिखा सकते हैं कि आपने क्या बनाया ड्यूरिंग योर हॉलीडेज और
whatever time. तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है. तो इसलिए अगर आप ही बीच में कुछ ऊपड़ंग तरीके से करोगे, आपका दिल टूट जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, देन आप उसको क्रश करके फेंक दो. सो आई वुड से कि हर स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव कम बैक टू दिस स्टेप. ये इससे पहले क्या था, ये इस लेवल पे था, तो हमने ये फोल्ड किया, ये वाला साइड फोल्ड किया, और फिर सिमिलरली दूसरी तरफ भी वही चीज रिपीट किया, एंड देन वी हैव एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू अचीव. अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप हमारे पास रह जाता है. वो क्या, वो ये है कि ये जो हमारे पास ये पंखुड़ियां हैं, इन पंखुड़ियों को, ये देखो यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है, तो इस एंगल के बेसिस पे हम इन पंखुड़ियों को ओपन करते चले जाएंगे. पहले हमने एक साइड का ओपन किया है, उसके बाद हमने इसे फ्लिप करके अगेन वी जस्ट रिपीटेड. जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिगेमी में रिपीट वर्क बहुत है, तो ये हमने दोबारा दूसरी तरफ से रिपीट किया. अब हमने ये वाला हिस्सा फ्लिप किया. यहाँ पे 4 हिस्सा है दोस्तों. अगर मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा दिखाऊं तो इट हैज़ गॉट 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4. सो हमें चारों तरफ ही वो शेप लेना है. ओके, तो हमने अब ये जो हमने 2 तरफ तो हमने इस तरह से कर दिया था, अब हमने ये दूसरा वाला हिस्सा ओपन किया है. एंड आफ्टर ओपनिंग दिस व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वी आर बाय अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इसी से फॉलो करते हुए हमने ये वाले साइड्स भी ओपन कर दिया. ठीक है. ओके, सो नाउ आवर फ्लावर पॉट, स्मॉल लिटिल फ्लावर पॉट इज रेडी टू ओपन अप. सो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये दोनों हिस्सा खोला, उसके बाद धीरे से, बहुत धीरे से, क्योंकि यहाँ पे ये फोल्ड बिगड़ ना जाए. अगर फोल्ड बिगड़ गया तो फिर इट बिकम्स मेसी. तो ये हमने धीरे से खोला, और उसके बाद हमने क्या किया, बहुत ही स्लोली दोनों फिंगर को ऐसे अंदर डाल के धीरे से हम इधर से हल्का सा ओपन करेंगे, फिर इसको फिर मूव करके फिर थोड़ा सा धीरे से फिर ओपन करेंगे. और ये हमारा एक ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग कॉन्सेप्ट तैयार है, जिसमें अंदर का कलर कुछ है, बाहर का कलर कुछ है, एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल. यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो गिव्स एन इंप्रेशन. यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम जैसे रिधिमा ने किया है, अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपके पास कोई रबर, छोटा सा कोई चीज़ जो आप अपना रखना चाहते हैं, तो आप आराम से इन चीज़ों को इसके अंदर रख सकते हैं. एंड इफ यू हैव मेड अ बर्ड लाइक दिस, अगर आपने एक ब्यूटीफुल बर्ड बनाया जैसे रिधिमा ने बनाया है, you can keep it for its resting. exactly. So this is like a nest also for the same. So that's about it. Hope you have liked this little creativity. Yeah, and hope you enjoyed this video, and we'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye.